Hello students, I welcome you all to my video. This video is for unit 4th of image processing. It is called image segmentation, and morphological image processing plays an important role in image segmentation. So we'll go through this topic in the next amount of time. Okay, so what is morphology? So morphology is a branch of biology that deals with the form and structure of organism without consideration of functions. So firstly, before understanding morphology, you must understand what is image segmentation. So students, I have already told you in class that image segmentation is a commonly used technique in digital image processing and analysis to partition an image into multiple parts or regions, often based on the characteristics of the pixels in the image. Image segmentation could involve separating foreground from background. आपको अगर किसी इमेज में से फोरग्राउंड अलग करना है, बैकग्राउंड भी सेपरेट करना है, तो उसके लिए भी मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग यूज़ की जाती है. इट इज़ अ मैथमेटिकल operations which is done on an image. So as you can see that the morphology is the branch of biology that deals with the form and structure of organism without consideration of function. So what is mathematical morphology? A mathematical tool for processing shapes in image including boundaries, just like boundary extraction, boundary identification, skeletons, convex hulls, which you will study later in the part. Morphological operations are typically applied to remove imperfection introduced during segmentation. जो भी इमेज के अंदर imperfections होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम morphological operations का यूज़ करते हैं, and these imperfections are introduced during segmentation. It means that if we divide an image so that we need to do processing on a selected part of an image, there are some imperfection which is appeared on the image, so we can remove these imperfection with the help of morphological operations. And it is done basically on binary images, and you can see that in the very first slide you can see two images. This image is after segmentation. So you have divided an image. This is the one part of an image. You can see it is a kind of a fingerprint. You can see the various kind of imperfection here, you can see that, and in the images also you can see these imperfection lies in the image as well. Now after segmentation and morphological processing, you will get the perfect image on which you can do the processing. Okay, so moving to the next slide, this is the example which I was talking about. And morphology is a mathematical operation, so you have some mathematical notations as well, like set, membership, subset, empty set, complement set, union, intersection, set differences, disjoint sets. These are all the operations which are used in morphological image processing. So moving to the next slide, and you can see the set relations as well. You have the object A and object B. If you want to take the union of these two objects, then A as well as B both are having this connection. Okay, तो यहाँ पर देखिए आप A और B दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दोनों यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हम A और A का यूनियन B के साथ ले रहे हैं, तो A भी पूरा ऑब्जेक्ट आएगा और B भी पूरा ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर. अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, इफ़ यू टॉक अबाउट इंटरसेक्शन, सो यू कैन सी दैट इंटरसेक्शन में आपका कॉमन पार्ट रह जाता है, यानी कि ए ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट है, जो पार्ट ओवरलैप करेगा वही पार्ट इसके अंदर रहता है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट, सो सपोज दिस इज़ एन ए, ऑब्जेक्ट ए, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसके छोड़कर, इस ऑब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा जो एरिया होगा वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा. ए माइनस बी अगर करते हैं तो ए तो पूरा है, उसमें से बी को अगर माइनस कर देंगे तो बी माइनस कर देंगे तो ये जो पोर्शन है पूरा ये आपका माइनस हो जाएगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेट रिलेशन विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड समवेयर. ओके, now if we talk about two main components, two main things of
morphological image processing, which is called reflection, or the reflection and translation. The reflection of a set B denoted by B cap is defined as B cap W is equals to minus B for B belongs to the set B. Small b belongs to the set capital B. And translation is the translation of a set B by point Z, Z1, Z2. किसी भी एक पॉइंट में आप के थ्रू ट्रांसलेशन ले सकते हैं, डिनोटेड बाय बी जेड. जो ट्रांसलेशन है उसको हम बी जेड से डिनोट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन है, ये दोनों ही आपके जो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं उनमें यूज़ होंगे, तो ये इनको समझना बहुत ज़रूरी है. तो इट इज़ डिफाइंड एज बी जेड इज इक्वल्स टू सी, सी इज इक्वल्स टू बी प्लस जेड. यहाँ पर आप देखिए, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एडिशन ज़रूर हो रहा है. ठीक है, तो फॉर बी बिलोंग्स टू बी, बी प्लस जेड. आगे एग्जाम्पल के देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये हमारी क्या है, एक इमेज है, एक प्रॉपर इमेज है, एंड कोई सेट हमने ले लिया है यहाँ पर. एंड देन उसका अगर रिफ्लेक्शन हम करते हैं तो रिफ्लेक्शन उसका ए का बी ये होता है. तो देखिए, जो इमेज यहाँ थी इसकी जस्ट अपोजिट इमेज हो गई वहाँ पर, तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रांसलेशन, तो जो पॉइंट के थ्रू हम बात कर रहे थे Z1, Z2, उस पर वो शिफ्ट हुआ है. यानी कि आपने देखा होगा इस फॉर्मूले में कि B प्लस जेड फॉर B बिलोंग्स टू B. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इट गॉट ट्रांसलेटेड. तो इसको डिनोट हम किससे करेंगे, BZ से करेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज़ बाइनरी इमेजेस. बाइनरी का टर्म जब भी आता है तो हम यहाँ देखते हैं कि दो ही चीज़ें होती हैं, 0 या 1. तो ऐसी इमेजेस जिनके फोरग्राउंड या बैकग्राउंड पिक्सल्स 0 होंगे या फिर 1 होंगे, या तो 1 वैल्यूड पिक्सल होंगे या फिर 0 वैल्यूड पिक्सल होंगे. तो बाइनरी इमेज बाई वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. एंड मॉर्फोलॉजिकल थ्योरी व्यूज़ के अकॉर्डिंग बाइनरी इमेजेस एज अ सेट ऑफ इट्स फोरग्राउंड. तो बाइनरी इमेजेस जो होती हैं अपने फोरग्राउंड से जानी जाती हैं. फोरग्राउंड का मतलब ये होता है 1 वैल्यूड पिक्सल्स जो हैं. तो यहाँ पर आप देखिए, जो भी 1 वैल्यूड पिक्सल हैं एक शेप देते हैं पर्टिकुलर इमेज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको. तो बाइनरी इमेज एज अ सेट ऑफ इट्स फोरग्राउंड 1 वैल्यूड पिक्सल्स. एलिमेंट्स ऑफ जेड स्क्वायर. जेड स्क्वायर हम इसलिए बोलते हैं यहाँ पर क्योंकि ये 4x4 की इमेज है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3x3 की भी हो सकती है, 2x2 की भी हो सकती है, 8x8 की भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस इमेज 1 2 3 4, 1 2 3 4, इट इज़ 4x4, दैट मीन्स 16. तो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 16. नाउ देयर आर सम लॉजिकल ऑपरेशंस बिटवीन बाइनरी इमेजेस. जो बाइनरी इमेजेस आपने जैसे देखा कि 1 वैल्यूड पिक्सल होगा या 0 वैल्यूड पिक्सल होगा, या तो वो ब्राइट पॉइंट होगा या वो डार्क पॉइंट होगा. तो ये इमेज आप देख सकते हैं बाइनरी इमेजेस ही हैं. यहाँ पर देखिए, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अगर हम इसका नॉट लेते हैं तो जो एरिया है ए का, उसके अलावा सारा जो एरिया है वो आ जाएगा, वाइट हो जाएगा, 1 वैल्यूड पिक्सल में आ जाएगा. अब ये जो वाइट को हम इधर मानते हैं 1 वैल्यूड पिक्सल और ब्लैक को मानते हैं 0 वैल्यूड पिक्सल. तो अगर हम एंड करेंगे दोनों का ऑपरेशन, तो समथिंग जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा. अगर हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, जैसे यूनियन में होता है उसी तरह से ए और बी दोनों कंपोनेंट्स आएंगे. एक्सॉर अगर परफॉर्म करेंगे तो इस तरीके से कुछ रिज़ल्ट आएगा, और अगर हम एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो फिर रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आएगा. तो स्टूडेंट्स, देयर आर सम बेसिक कंपोनेंट्स इन मॉर्फोलॉजी एज वेल. लाइक एवरी ऑपरेशन हैज़ 2 एलिमेंट्स. 2 एलिमेंट्स के थ्रू आप कोई भी मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं टू गेट द बेटर इमेज. फर्स्ट वन इज़ इनपुट इमेज इटसेल्फ. जो इनपुट इमेज है जिस पर आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है वो इमेज होगी. और दूसरा है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. यानी कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपको शेप बताता है कि किस शेप में आपको ये करना है. So the results of the operations mainly depends upon the structuring element chosen. जैसा भी आप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट चूज़ करेंगे वैसा ही आउटपुट रिजल्ट आपको मिलेगा. ये आप आगे एग्जाम्पल में आप देख सकेंगे. देखिए 3x3 का एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है,
और ये 4 नेबर का एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये 2 नेबर का एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। तो ऑरिजिन इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। ऑरिजिन पे देखिएगा आप क्रॉस लगा हुआ है, तो ये ऑरिजिन जो होता है वो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का मेंबर नहीं होता है। टिपिकल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, एक्स डिनोट्स द ऑरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होता क्या है। Structuring element is a matrix that identifies the pixels in the image being processed and defines the neighborhood used in the processing of each pixels. Okay, you typically choose a structuring element the same size and shape as the objects you want to process in the input image, यानी कि हमें जिस तरह से प्रोसेसिंग करनी है इमेज में उसी शेप का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेते हैं। कई सारी शेप्स के स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 3 शेप आपको दिखे हैं, इनसे ज़्यादा भी और अलग अलग तरीके के शेप के स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट भी होते हैं। अब आगे देखिए आप, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स कैन बी एनी साइज़ एंड एनी शेप, किसी भी साइज़ का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ये जो डॉट हर एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट में देख रहे हैं वो इसका ओरिजिन है, जो कि मेंबर नहीं होता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का। तो ये देखिए ये है शेप, ये भी है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, किसी भी शेप में आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? तो फंडामेंटली मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग इज़ वेरी लाइक स्पेशल फिल्टरिंग। ओके, द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज मूव्ड अक्रॉस एवरी पिक्सल in the original image to give a pixel a new processed image। यानी कि एक इमेज है आपकी, उसके ऊपर आप जो भी साइज़ का और शेप का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेंगे उसको आपको मूव कराना पड़ेगा पिक्सल टू पिक्सल, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज मूव्ड अक्रॉस एवरी पिक्सल इन द ओरिजिनल इमेज टू गिव अ पिक्सल इन अ न्यू प्रोसेस्ड इमेज, एंड द वैल्यू ऑफ दिस न्यू पिक्सल डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन परफॉर्म्ड। जो भी आप वैल्यू आती है आफ्टर प्रोसेसिंग एन इमेज विल टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट ऑपरेशंस यू हैव अप्लाइड। तो ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 बेसिक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ डायलेशन एंड सेकेंड वन इज़ इरोजन, एंड दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि एवरी ईयर ये आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं या फिर एग्जाम्पल के तौर पर पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है आने की। तो दे आर द बेसिक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस, डायलेशन एंड इरोजन। नाउ वी विल सी अबाउट डायलेशन फर्स्ट। डायलेशन इज़ एन ऑपरेशन दैट grows और थिकन्स ऑब्जेक्ट इन अ बाइनरी इमेज। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि डायलेशन जो होता है वो इमेज को थिक करता है या फिर उसको ग्रो करता है। द स्पेसिफिक मैनर ऑफ दिस थिकनिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ शेप रेफर टू एज स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। जो भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि किस शेप में आपकी जो प्रोसेस्ड इमेज है वो बनेगी। और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होता है, वो किसी भी शेप, किसी भी साइज़ का हो सकता है। द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज ट्रांसलेटेड थ्रू आउट the domain of the image to see whether it overlaps with one valued pixel। ट्रांसलेट किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था ट्रांसलेशन और रिफ्लेक्शन 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो आएंगे इन ऑपरेशंस में। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसलेट किया जाता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को ओवर द इमेज टू सी वेयर इट ओवरलैप्स विद वन वैल्यूड पिक्सल्स। द आउटपुट इमेज इज 1 at each locations of the origin such that the structuring element overlaps at least one valued pixel in the input image। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी आउटपुट इमेज आप बनाते हैं उसमें आप 1 पुट करेंगे हर एक लोकेशन जो भी उसके ओरिजिन की है, और जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ओवरलैप कर रहा है किसी भी 1 वैल्यूड पिक्सल से उसका जो ओरिजिन है इन द इनपुट इमेज, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के 1 वैल्यूड पिक्सल है और जो प्रोसेस्ड इमेज है वहाँ पर भी आप 1 पुट कर देंगे अकॉर्डिंगली। तो देखिए इसको मैथमेटिकली भी हम बोल सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ डायलेशन, विद a and b are sets in Z square, the dilation of a by b denoted by a dilation b is defined as b cap, that is b reflection, b cap means b reflection
और ब्रैकेट में भी है, नीचे z है, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन को शिफ्ट किया गया है z से, यानी कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मूव कर रहा है तो ट्रांसलेट तो करना ही पड़ेगा। इंटरसेक्शन विथ a इज नॉट इज इक्वल्स टू फाई, तो इन डायलेशन दिस इक्वेशन नीड्स टू बी जस्टिफाइड। Okay, theoretical way of generation is obtain the reflection of B about its origin। तो आप सबसे पहला पार्ट क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें इसको थ्योरेटिकली यहाँ पे तोड़ दिया है दो पार्ट में। तो पहला पार्ट क्या है, ये जो B है जो आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ऑब्टेन द रिफ्लेक्शन ऑफ B अबाउट इट्स ऑरिजिन। यहाँ पर क्या किया गया है, रिफ्लेक्शन ऑब्टेन किया गया है, और उसके बाद शिफ्ट दिस रिफ्लेक्शन बाय z। यहाँ पर देखिए z है तो उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, और उसका इंटरसेक्शन विद इनपुट इमेज इज़ नॉट इक्वल्स टू फाई। उसका इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो फाई नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ पार्ट ओवरलैप ज़रूर करना चाहिए। तो यू कैन सी अनदर डेफिनेशन ऑफ डायलेशन। डायलेशन ऑफ a by b इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट origin locations where the reflected and translated b overlaps at least some portion of A. So we can see the example as well. Okay, so this is an example, a very simple example of dilation. जैसे ये इमेज आपको यहाँ पर दी गई है, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही मिले, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, तो बाइनरी इमेजेस इजीली वहाँ बन सकती हैं। ये कलरफुल इमेज यहाँ पर दिख रही है आपको, वो हो सकता है फोरग्राउंड पिक्सल यहाँ पर ब्लैक हो और बैकग्राउंड पिक्सल है वो आपका ज़ीरो हो, और जिसको हम कह सकते हैं वाइट हो। तो ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में भी ये इमेज हो सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कलरफुल बनाया हुआ है। और ये हमारा देखिए नीचे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, जो मैंने बोला था किसी भी शेप और साइज़ का हो सकता है। अब इस ओरिजिनल इमेज पर हम डायलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी वो आप याद ध्यान में रखिएगा, और जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसको हम मूव कराएंगे इमेज पर, यानी कि ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सबसे पहले कहाँ फिट हो सकता है, इसका ओरिजिन यहाँ फिट होगा जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, और उसके वन वैल्यूड पिक्सल कहाँ कहाँ होंगे, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा और इधर होगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को हमें मूव कराना होता है, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, लास्ट में इधर जाएगा, देन फिर नीचे इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा। इस तरह से ये क्या होता रहेगा, ये ट्रांसलेट होता रहेगा पूरी इमेज, तब तक ये स्कैन ना कर दे, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म ना कर दे। तो यहाँ पर जैसे डायलेशन की मेन प्रॉपर्टी क्या थी कि वो ग्रो करता है किसी ऑब्जेक्ट को या थिकन्स करता है, इट थिकन्स द ऑब्जेक्ट। लेट्स वी स्टार्ट विद एग्जांपल। दिस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इफ वी पुट हियर, यू कैन सी दैट नो वन वैल्यूड पिक्सल इज ओवरलैपिंग एन इनपुट इमेज, यानी कोई भी इनपुट इमेज को प्रोसेस नहीं कर रहा है जो उसका वन वैल्यूड पिक्सल है, जो ओरिजिन है। ओके, नाउ उसको मूव करा देंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ मेरा पॉइंटर है वहाँ देखिएगा। यहाँ पर अगर हमने इस इमेज को रखा है, इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को रखा है इस इमेज के ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का जो ओरिजिन है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है ओरिजिनल इमेज से। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, जस्ट इमेजिन ये आपका यहाँ पर ओरिजिन है इसका, ये क्या कर गया, ओवरलैप कर गया ओरिजिनल इमेज से। नाउ इट इज़ ओवरलैपिंग विद द ओरिजिनल इमेज। जो वन वैल्यूड पिक्सल्स हैं वो वन होगा ऊपर और वन होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वन वैल्यूड पिक्सल्स आ गए। ये जो ग्रीन में भी है वो वन है, वो क्या है, आफ्टर प्रोसेसिंग जो वन हुए हैं पिक्सल, उनको ग्रीन में यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिजिनल से यहाँ पर ओवरलैप किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, वन हो गया, और यहाँ पर भी वन वैल्यूड पिक्सल है। जो भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये वन वैल्यूड पिक्सल होंगे वो ओरिजिनल इमेज में हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, वन हो गया। अब हम मूव करते हैं इधर, इस साइड आ गए, तो यहाँ देखिए यहाँ पर और यहाँ पर तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर भी ऑलरेडी है, तो बची कौन सी जगह, ये। तो यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए रिजल्टिंग इमेज में यहाँ पर भी क्या हो गया, आपका वन वैल्यूड पिक्सल हो गया। अब इसको मूव करते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा ओरिजिन इसका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का। देन यू कैन सी दिस पोर्शन इज ऑल्सो वन, दिस इज ऑल्सो वन। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, दिस एंड दिस। तो दीज आर द टू पिक्सल्स विच विल बी
टर्न इनटू वन वैल्यूड पिक्सेल्स। ठीक है, अब जैसे ही स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यहाँ आया तो ओरिजिन इसको ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। फिर अगेन हमें यहाँ ले गए इसको, इसी तरह से ये सारा प्रोसेस मूव करेगा, यहाँ पे ले जाएंगे तो भी ओरिजिन पर नहीं कर रहा है ओवरलैप, देन वी मूव फॉरवर्ड, देन वी कैन सी दैट इट इज़ ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर वन वैल्यूड पिक्सल्स कर देंगे और यहाँ पर वन वैल्यूड पिक्सल कर देंगे, यहाँ और यहाँ ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पर देखिए अब ये टर्न हो गया ग्रीन में, ये भी टर्न हो गया ग्रीन में, यहाँ की इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वन वैल्यूड पिक्सल हो गए, यहाँ पर भी क्या हो गया, वन वैल्यूड पिक्सल हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑलरेडी वन है, ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन और ये पोर्शन ऑलरेडी वन है, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ मूव करेंगे तो ये भी वो ये पोर्शन ये वाला पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ऑलरेडी वन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको यहाँ ले जाते हैं तो फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर सारे एलिमेंट वन वैल्यूड पिक्सल नहीं है, तो ये है और ये है, दो तो है, लेकिन दो और नेबर रह गए, तो यहाँ पर हम वन कर देंगे और यहाँ पर वन कर देंगे। ये जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का जो भी वन वैल्यूड पिक्सल है वो वन कर दिया जाता है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वन हो गया, यहाँ पर वन हो गया, तो दोनों क्या हो गया, शेप में चेंज दिख रहा है आपको कुछ। इसी तरह से हम इसको पूरा जब मूव करेंगे इस ओरिजिनल इमेज में, तो द रिजल्ट विच विल गेट इज़ दिस। ये जो इमेज आपको राइट साइड में दिख रही है, प्रोसेस्ड इमेज विद डायलेटेड पिक्सल्स, तो इसका आउटपुट ये होगा और यही होता है आपका डायलेशन प्रोसेस। For example, you can also see this image structuring element B. Okay, these are the neighbors S, P, Q, R and this is the object A. Dilation process यहाँ पे करनी है, ये एग्जाम्पल है, आपको घर पर इसको सॉल्व करना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, आप मुझे बता सकते हैं। इसका आउटपुट अगर हमने इस पर, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, यहाँ पर इमेज है A और इस पर प्रोसेसिंग की हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के थ्रू, then the result which we get is this. Okay, the result after the dilation process. So these are the various dilation examples. You can also have the structuring element like this. ये आपका एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो सकता है, और कोई इमेज है जैसे ब्लू में जो दिख रहा होगा वो ओरिजिनल इमेज है, और ये जो पिंक कलर में है वो आफ्टर द डायलेशन रिजल्ट जो आया है वो है। तो रिजल्ट ऑफ डायलेशन ऑब्जेक्ट ए विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी, यानी कि फुल शेप एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। ओके, सो डायलेशन बाय सर्कुलर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जैसा मैंने कहा कि किसी भी साइज़ और शेप का हो सकता है, तो वो सर्कुलर शेप में भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है डायलेशन का, और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट भी हो सकता है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। और ये आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे ये देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, आप देख रहे हैं आप, अगर शेप जो है रेक्टेंगल होती है या सर्कुलर होती है, तो उस पर रिफ्लेक्शन का फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जो शेप सेम है, यानी कि चारों तरफ से सेम है, यानी सर्कुलर इमेज है, स्क्वायर इमेज है, रेक्टेंगल इमेज है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा रिफ्लेक्शन का। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ट्रायंगुलर जो इमेज है अगर हम बात करें, तो हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ये है बी। अब सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है डायलेशन में, कि इसका क्या किया जाता है, इसका किया जाता है रिफ्लेक्शन। ओके, तो अगर हम इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का रिफ्लेक्शन कर देंगे तो ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी कैप में। और अब हमें इमेज जो ओरिजिनल इमेज है उसके ऊपर इसको ट्रांसलेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो रेक्टेंगल बी दिया था, सॉरी जो यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी दिया था, वो वैसा नहीं है, उसको जस्ट अपसाइड डाउन उल्टा कर दिया गया है, और उसका जो रिफ्लेक्शन निकाला गया है उसके बाद उसको ट्रैवर्स किया गया है यहाँ पर। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ये भी एक एग्जाम्पल है, इसको आप देख सकते हैं किस तरह से डायलेशन ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ डायलेशन। देखिए जैसे यहाँ पर जो प्रैक्टिकलिटी है डायलेशन की एग्जाम्पल, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे हमारे ओरिजिनल इमेज है, यहाँ पर डायलेशन किया 3x3 स्क्वायर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से, रिजल्ट क्या आया, थोड़ा सा थिक हो गया है, थोड़ा सा ग्रो करने लगा। एंड 5x5 जितना आप साइज़ बढ़ाते जाएंगे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का, उतना ही वो थिकन्स होता जाएगा इमेज। ठीक है, जैसे 3x3 में थोड़ी कम हुई थी
और 5x5 में बहुत ज़्यादा थिक हो गई, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया ऑब्जेक्ट आपका। तो ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायलेशन। एंड क्यों डायलेशन यूज़ किया जाता है, व्हाट इज़ डायलेशन फॉर। तो डायलेशन कैन रिपेयर ब्रेक्स, यानी कि कोई इमेज है आपकी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसमें ब्रेक है, जैसे ओ है यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है, तो ये रिपेयर कर सकता है ब्रेक्स को। डायलेशन कैन ऑल्सो रिपेयर इंट्रूजन्स, यहाँ देख सकते हैं ये सर्कुलर शेप है, वो पूरी सर्कुलर नहीं है, यहाँ पर कुछ तरीके के इंट्रूजन्स आपको दिख रहे होंगे, तो उनको भी क्या करता है, ये रिपेयर करता है। एंड डायलेशन जनरली enlarge the objects. So this is the practical example of dilation process. You can see the original image which is in English language. This is the letter YEAR. If you see that example, ear, E and A are not clear. If any machine understand any English language, then it will be a problem because these components are not connected as well. So E and A है यहाँ पर, then after dilation process you will get the result this, and you can clearly identify each and every character, each and every word of an image. So this is the benefit of using dilation, and it is also bridging gaps. Okay, this is also the uses of a dilation. You can see the candidate is standing, walking, and you can get this image without a foreground, and then moving object detection using background subtraction in complex wavelet domain. करंट फ्रेम जो है ए आपका, और बी है कंप्यूटेड रेफरेंस फ्रेम जो विदाउट फोरग्राउंड है, सी इज़ द बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन विदाउट मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, एंड डी इज़ द रिजल्ट आफ्टर मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस और प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर गैप आपको दिख रहे होंगे, ये क्या होगा, यहाँ पर फिल हो गया गैप। तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल इन इमेज प्रोसेसिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो अनदर डेफिनेशन डायलेशन की ये भी हो सकती है, ए डायलेशन बी। डायलेशन कंबाइंस टू सेट्स यूजिंग वेक्टर एडिशन a, b प्लस c, d इज इक्वल्स टू a प्लस सी एंड b प्लस d। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ए डायलेशन बी, p बिलोंग्स टू z स्क्वायर, p इज इक्वल्स टू a प्लस b, a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू सेट b। तो यहाँ पर दो सेट आपके दिए हुए हैं, एक तो a है, a को हम मानते हैं हमेशा ओरिजिनल इमेज, b को क्या मानते हैं, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो a हमारा ओरिजिनल इमेज है, b हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। अब जो रिजल्ट आएगा डायलेशन का वो क्या होगा, a डायलेशन b इज इक्वल्स टू, जो a के अंदर एलिमेंट्स हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे ही, वो तो एज इट इज़ रहेंगे ही। क्यों रहेंगे, क्योंकि आप डायलेशन देख सकते हैं यहाँ पर 0 0 भी है, और ये ओरिजिन है, और ये है 1 0। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो सेम मिलेगी, यानी कि 0 0 को ऐड करेंगे 1 0 में तो 1 0 मिलेगा, इसको ऐड करेंगे 1 1 में तो 1 1 मिलेगा। इसी तरह से सबको ऐड करते करते आपको 0 4 तक तो मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का 1 0, उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका 1 0 को 1 0 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2 0। 1 0 को 1 1 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज 2 1। इसी तरह से इसको हम इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 2, 3 2, 1 3 एंड 1 4। So this is the another definition you can say of dilation, and there are some properties of dilation as well. Dilation is commutative. A dilation B is equals to B dilation A. The result will always same. Dilation is associative. It also follows the associative property. Dilation is invariant to translation as well. Okay. So we have studied about the dilation process. In the next lecture or in the next video, we will study about erosion. Thank you for watching.